Hi guys, Nykaa Hot Pink sale is live and I'm going to recommend some products that I have been using for quite some time. In this video, whatever products I'm going to recommend are tried and tested. So it's not going to be a lot of products because I'm going to recommend products that I actually like. I'll mention all the links in the description. You can check it out. Without wasting any time, let's begin the video. I will recommend maximum 3 products in each category. Mainly it's going to be just 1 or 2 products. So let's begin with skincare first. In moisturizer, I have only this product to recommend. It's Pond's Gel Moisturizer. It's really good for combination to oily skin, and why I started loving this product so much is because when I asked my dermatologist, she said it's a good product, you can use it on a daily basis. I love how the texture is gel like. You can see it's very light, and most importantly it's affordable too, so I love it. The first one is this Dot & Key's tinted sunscreen. I absolutely love it. And another tinted sunscreen that I love is this one from Requel. I have used it for 2 years and I can definitely tell you that it's a very good sunscreen. The tint is really nice. So I'll tell you difference between this one and Requel sunscreen. This one gives you a glowy, dewy base, and Requel one gives you a matte like finish. Like people with oily skin may prefer that one. Requel has 1 shade but Dot & Key has 5 shades. The one I use is 03 Sand. Another medicated one is this from LA Shield. There are a lot of options in LA Shield sunscreen, but I particularly love this one because it has a white type of tint. It doesn't give a white cast. It may feel like it is giving a white cast in the beginning, but once you start blending it properly, it gives such a nice tint. Also, if you sweat, the tint doesn't go away. So this is also I really like about the sunscreen, and I've recommended it to so many of my family and friends and they love it. Let's move on to face wash. This Episoft face wash is really good for dry to combination skin. It's medicated, it's loved by a lot of people, so it's a safe face wash. I'm currently using this face wash. It's Plum's Niacinamide Rice Water Sunscreen with hyaluronic acid. I'm really liking it, so it's my second one. Like I feel like this one doesn't make my skin dry. So I think it works really good for me. Let's move on to makeup now. So let's first talk about primers. I love Lakme's gel primer. It's so good. It blurs the pores so perfectly. I even like the peachish type of, I don't know what it is called, but it has a peach type of tint in the primer. I like that also, but the gel one is the best. But this time I got this glow primer from Lakme. I'm going to try this and see how it works. Next is concealer. I have used LA Girl concealer for 2-3 years and it's really good and somewhat affordable also. Let's come to foundation now. So I'm going to talk about affordable one first. So I have used Fit Me foundation. This noise. I have used Maybelline's Fit Me foundation for a long time. It oxidizes a little, so you can maybe opt for a lighter shade. Apart from that, it's a very good foundation. Next I've used a lot is K Beauty's foundation. It gives you very, glowy type of look, natural finish because it has low coverage. So it's good for people who do not have a lot of blemishes or marks on their face. You are going to definitely love it if your skin is somewhat clear. But I also noticed it finishes off so quick. But yeah, it's a good foundation. Next foundation that I am absolutely loving is this Milani's 2-in-1 foundation. I already have this one, but I ordered it again because मैंने जब खरीदा था it was for 1800 something and now it is for 1260 rupees. I was like, I need to buy this. It claims that it is 2-in-1 foundation plus concealer दोनों का काम करता है and it's actually true. आपको पता चलेगा कि आपके जो मार्क्स वगैरह है फेस पे वो बहुत क्लियर हो जाएंगे, क्लियर एज इन छुप जाएंगे ये लगाने से. बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू अ स्टोर बिफोर बाइंग एनी फाउंडेशन बिकॉज जब तक आपका शेड मैच नहीं होगा आपको फाउंडेशन नहीं समझ आएगा, वो आप पे अच्छा लग ही नहीं सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाउडर. सबसे पहले मैं इस पाउडर का बात करने वाली हूँ. दिस इज Maybelline Fit Me फिनिशिंग लूज पाउडर जो मैं 2021 से यूज़ कर रही हूँ एंड इट्स सच अ गुड पाउडर.
आप बिना मेकअप के भी इसको लगाओ, आपके फेस पे एक ऐसा लेयर बना देगा जिससे लगेगा कि एकदम प्रेजेंटेबल दिख रहे हो आप, वो ऑयल कंट्रोल टाइप का करेगा। इसको आप जस्ट सनस्क्रीन के ऊपर भी लगा लो समर्स में तो बहुत अच्छा काम करेगा ये। इट्स लाइक मस्ट हैव, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज दिस मिलानीज कंसील प्लस परफेक्ट शाइन प्रूफ पाउडर। ये भी बहुत सही है, मैंने इसका भी एक और ऑर्डर किया है बिकॉज इट वॉज ऑन डिस्काउंट एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं ब्लश एंड कॉन्टोर पे। एक्चुअली मुझे इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव यूज्ड ओनली फ्यू ब्रांड्स ऑफ कॉन्टोर एंड ब्लशेस। मुझे उसमें से के ब्यूटी का बहुत अच्छा लगा। ये वाला ब्लश इन द शेड स्वीट हार्ट पिंक इज रियली गुड, बहुत ही प्यारा बेबी पिंक सा है, बहुत नेचुरल टाइप का फिनिश देगा एंड क्रीम प्रोडक्ट है, सो आई लाइक इट। नेक्स्ट इज दिस कॉन्टोर स्टिक फ्रॉम के ब्यूटी अगेन। इसमें 3 शेड्स हैं, मैं मिडिल वाला शेड यूज़ करती हूँ। ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे बिकॉज इट्स ईजी टू कैरी, इट्स ईजी टू अप्लाई। एक पेंसिल टाइप का है एंड उसको आप इजीली ब्लेंड भी कर सकते हो अपने फिंगर्स से। इवन द ब्लश कैन बी ब्लेंडेड यूजिंग योर फिंगर्स। तो ये भी क्रीम कॉन्टोर है। सो या दीज 2 आर माई फेवरेट ब्लश एंड कॉन्टोर प्रोडक्ट्स. Next is eyebrow pencil. I have used quite a few, but I absolutely love this one from Etude House. It's in the shade 01 dark brown. I personally do not like black eyebrow pencil because I already have extremely dense eyebrows. तो इससे क्या करती हूँ मैं, सिर्फ जो थोड़े गैप्स है उनको फिल करती हूँ एंड पीछे जो स्पूली है उससे बस ब्रश ऑफ कर लेती हूँ. सो इट वर्क्स वेरी गुड फॉर मी एंड इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईलाइनर्स. I have used a lot of eyeliners, but मुझे brown eyeliners ज़्यादा अच्छे लगते हैं. Again, my reason is that I have dark brown eyes and very dense eyebrows. तो मैं अगर black eyeliner हमेशा लगा लूँ तो वो पता नहीं एक अच्छा लुक नहीं देता है. सो आई लव ब्राउन आईलाइनर. यू शुड ऑल्सो ट्राई, आपको सही में बहुत अच्छा लगने वाला है बिकॉज वो आपको एक सटल सा लुक देगा एंड इट लुक्स रियली गुड. आई यूज टू लव कलरबाज ब्राउन आईलाइनर, लेकिन वो अब मुझे कहीं नहीं मिल रहा है. वैसा मुझे कोई और ब्रांड में नहीं मिला. बट करेंटली आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम के ब्यूटी. इट्स इन द शेड सिजलिंग मौका. ये भी अच्छा है बट ये थोड़ा ज़्यादा ही लाइट है. Otherwise it's good and smudge भी नहीं होता है. Next काजल is this golden one from K Beauty. ये काजल मैंने किसी के वीडियो में देखा था कि आप इसको लगाओगे तो आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी दिखने लग जाएगी एंड इट्स एक्चुअली ट्रू. तो मैं जब भी फेस्टिव लुक या फिर पार्टी लुक करती हूँ मैं ये ज़रूर लगाती हूँ. Now let's come to mascara. I have used a lot of mascaras but there are quite a few that I love. फर्स्ट तो मैं इसको मेंशन करना चाहूँगी, इट्स फ्रॉम कलरबा. इट्स रियली रियली गुड. ये बहुत अच्छा आपको वॉल्यूम दे देता है, बहुत डेंस कर देता है. सो इट्स वेरी वेरी गुड. और इसको रिमूव करना भी इतना मुश्किल नहीं है कि आपको ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर नहीं चाहिए इसको हटाने के लिए. तो इसके लिए भी मुझे ये बहुत पसंद है कि ये स्टबर्न नहीं है बट ऑल्सो बहुत अच्छा लुक दे देता है. अगर किसी को वाटरप्रूफ मस्कारा चाहिए तो मेबलिन का ये बहुत अच्छा है. इसका एक ही प्रॉब्लम है कि ये वाटरप्रूफ है तो इसको हटाना बहुत मुश्किल है. आपको इसके लिए ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर सकते हो. तो ये दोनों ही बहुत अच्छा है. इनफैक्ट ये वाला तो आपको फॉल्स लैशेस जैसा लुक दे देगा ऑलमोस्ट. सो या ऐसे अफोर्डेबल में मैंने सुना है कि ये मेबलिन का बहुत अच्छा है. मैंने ट्राई नहीं किया है. आई एम गोइंग टू ट्राई इट सून. लेट्स कम टू आई शैडोज नाउ. सो आई हैव यूज्ड लैक्मे, रेवलॉन, निका के, Huda Beauty a lot of eyeshadows. I think Nika K's eyeshadow palettes are good. They are affordable and pigment अच्छा है, blend अच्छे से हो जाता है. And next is this Revlon's eyeshadow palette. I bought this eyeshadow palette when I did not know even ABCD of makeup. मुझे आता भी नहीं था यूज़ करना, बट मैं धीरे धीरे बाद में शुरू करने लगी हाउ टू डू इट. सो उसके बाद ये एक्सपायर हो गया और बहुत ख़राब हो गया था तो मैंने इसको फेंक दिया. बट आई एम गोइंग टू बाय इट अगेन. अभी मैं वीडियो ख़त्म करने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस करने वाली हूँ और ये आई शैडो पैलेट मंगवाने वाली हूँ. अब मैं आपको इस आई शैडो पैलेट के बारे में बताऊँगी. आपने ये तो बहुत सुना होगा हुडा ब्यूटी का. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको एटलीस्ट 20 से 25 लुक्स नहीं क्रिएट करने हैं इन अ ईयर तो आप एक्सपेंसिव आई शैडो मत लो. एंड इफ़ यू हैव सिस्टर्स, कजन्स जिनके साथ आप आई शैडो शेयर कर सकते हो तो ही खरीदना, बिकॉज अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस. ये सारे शेड्स हैं, नो डाउट शेड्स बहुत अच्छे हैं और जो लोग बोलते हैं ना कि इतना अच्छा पिगमेंट है, इतने अच्छे से ब्लेंड होता है, वो बिल्कुल सही है.
द हाइप इज रियल, वरना इतने लोग ही नहीं लेने वाले हैं ये। बट अगेन आई थिंक जिनको जरूरत है वही ये तो अच्छा है। इनफैक्ट इसका एक छोटा भी आता है जिसमें 9 शेड्स होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अब अगर आपके एक साल में बहुत लोगों की शादी हो रही है या फिर आपकी खुद की शादी हो रही है तो आप ये लो तो फिर भी सेंस बनता है, अदरवाइज नहीं। इनफैक्ट मैंने भी ये तब लिया था जब मेरा रोका हो रहा था और मैं खुद अपना रोका का मेकअप करने वाली थी। आई थॉट इट वुड मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन दिस। अब मेरे फेवरेट कैटेगरी पे आते हैं लिपस्टिक्स। सबसे पहले मैं इसकी बात करने वाली हूँ। इट्स मेबेलिन्स लिप ग्लॉस इन द शेड पेटल। ओ माई गॉड, आई डिड नॉट थिंक आई एम गोइंग टू लव इट सो मच। मैंने इसको अपने शादी में भी यूज किया, संगीत एंड कार्निवल। आई कांट टेल यू गाइज, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। जो शाइन देगा, जो कलर देगा, वो आप कोई भी लिपस्टिक लगा के उसके ऊपर क्लियर ग्लॉस लगा लो, नहीं मिलने वाला है। दिस इज रियली रियली गुड। अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है या फिर आस पास का है ना, तो आप ये लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस, लिप लाइनर्स कंसिडर कर सकते हो फॉर श्योर। Now let's come to lip liners. I have these 2 lip liners that I've used for quite some time and दोनों का कलर बहुत सही है। This is nude brown in the shade Choco Nude. It's from Swiss Beauty. This is a very pretty pink shade. It's from Mars Cosmetics. But problem ये है कि मुझे इसका shade समझ नहीं आ रहा है, shade नहीं दिख रहा मुझे। I will find out and mention the link in the description. But बहुत 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 प्यारा है। See, इतना सही है ये। इसको तो मैं एज अ लिपस्टिक भी यूज़ करती हूँ। एंड दिस इज़ द न्यूड वन। आप इन दोनों को ही एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो एंड दोनों बहुत अफोर्डेबल है, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिपस्टिक्स। तो मैंने इसको 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले मैं बात करने वाली हूँ डार्क शेड्स के बारे में। सबसे पहले मुझे इस लिपस्टिक के बारे में बात करना है। इट्स फ्रॉम NYX NYX। इट्स इन द शेड कोपेनहेगन। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक। स्टोर में फिर भी मिल जाता है कभी कभी, बट नायका पे हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। इट इज सच अ ब्यूटिफुल मरून शेड। आई पर्सनली डू नॉट लाइक एक्सट्रीमली लाउड लिप्स, बट ये वाला मरून परफेक्ट है। ये देखो आप। नेक्स्ट इज दिस ब्राउन वन फ्रॉम प्लम्प। ये देखो आप, ये किसी किसी पे न्यूड जैसा लुक देता है, बट मुझ पे ये थोड़ा डार्क लगता है। बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं, बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं, तो जस्ट जितना बोल्ड दिखना चाहिए उतना बोल्ड। एंड ये दोनों कलर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये डस्की स्किन टोन पे भी बहुत अच्छा लगता है। इट्स इन द शेड अपसाइड ब्राउन। आई हैव वन मोर लिपस्टिक जिसको मैं पर्सनली डार्क बोलती हूँ, बट इसको न्यूड बोला जाएगा, इसके तो नाम में भी न्यूड है। दिस इज वेलवेट न्यूड फ्रॉम हीरो ब्यूटी। लव दिस लिपस्टिक सो मच। मैं इसको इसलिए डार्क बोलती हूँ बिकॉज ये रस्टिक टाइप का शेड है, यू नो, थोड़ा ऑरेंजिश टिंट है। तो जब मैं ये लगाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, इसलिए मैं इसको इस कैटेगरी में डाल रही हूँ। बट बहुत बहुत प्यारा कलर है। नाउ लेट्स कम टू न्यूड लिपस्टिक्स। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पिंक न्यूड्स। उसमें मेरा नंबर 1 फेवरेट इज मैक महर। मैक महर में कुछ तो बात है फॉर श्योर, इसलिए ये इतने लोगों का फेवरेट है। पहले मुझे लगता था ऐसी क्या बात है मैक महर में, बट आफ्टर यूजिंग इट आई अंडरस्टूड कुछ तो बात है। ये देखो, ऐसा शेड मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज आई फील लाइक ये ना पिंक एंड मॉव दोनों का मिक्सचर है। मैक महर के बहुत सारे ड्यूप्स है, बट इसको मैच करना इतना ईजी नहीं है। इनफैक्ट मैंने ही एक ड्यूप वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये ब्लश वेलवेट फ्रॉम लैक्मे दिखाया था। थोड़ा सा सिमिलर है, लाइक एकदम थोड़ा सा सिमिलर। ये मैं 2017 से यूज़ कर रही हूँ। कैन यू इमेजिन आई एम यूजिंग दिस सिंस 2017। मैं शायद 5-6 ख़त्म कर दी हूँ तब से अब तक। इट्स लैक्मेज लिप एंड चीक टिंट इन द शेड ब्लश वेलवेट एंड ओ माई गॉड, ये बहुत बहुत अच्छा शेड है। आप इसको एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो। इट्स सो सॉफ्ट ऑन द लिप्स, जस्ट वेरी गुड, लाइक यू विल लव इट। प्रॉपर न्यूड पिंक शेड है ये। चलो अब बात करते हैं ब्राउन न्यूड का। फर्स्ट वन हैज़ टू बी दिस वन फ्रॉम मैक। मैं यहाँ लगा लेती हूँ। यू नो, इट्स जस्ट सो कंफर्टेबल ऑन द लिप्स एंड ये प्रॉपर ब्राउन न्यूड है, यू नो, ऐसा मुझे कहीं नहीं मिला। एंड इट्स सो कंफर्टेबल ऑन द लिप्स ना कि मुझे ये बहुत अच्छा भी लगता है लगाना। तो येस, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट वन इज़ अफोर्डेबल वन। इट्स फ्रॉम नायका मद्रास कापी। आई लव इट। देखो आप, बहुत बहुत प्यारा शेड है। उसके बाद है नायका का वेकअप मेकअप या मेकअप वेकअप ऐसे कुछ, एंड ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स लाइक जब मैं बहुत हैवी आई लुक करती हूँ तब मैं ये लगा लेती हूँ।
Next is this mauvish type of nude shade from Sugar Cosmetics. बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत डिफरेंट टाइप का है. ये एक्चुअली पिंक वाले कैटेगरी में ही आना चाहिए. दिस इज़ द वन. इट्स लाइक मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये मुझे चाहिए अपने साथ, बिकॉज जब मैं बोल्ड लुक्स करती हूँ ना, तब मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है. सो दैट्स अबाउट इट गाइज. मैं जानबूझकर इस वीडियो में बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं करना चाहती थी, बिकॉज लेट्स ट्राई एंड अवॉइड बाइंग एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स. जितनी ज़रूरत है उतने ही खरीदते हैं तो बेटर रहेगा. सो दैट्स वाई आई रिकमेंडेड my most favorite products that I have tried and tested properly. Hope it was helpful to you. Please like, comment, share and subscribe to my channel, and let me know what video you would like to see next.